Hello students, welcome to Computer Studies. In the last lecture, we have started with chapter number 13, Current Trends and Technologies. In this, we were looking for emerging trends in computing. So, very first trend was regarding mobile computing. In that, we have seen GPRS, Wi-Fi, then satellite phone, mobile phones, Bluetooth, tablets, smartphones, etc. Now, today we are going to study about cloud computing. So, what is cloud computing actually? The word cloud means cloud is not having specific dimension or size or shape. It is moving all around. Every time it is getting changed, shape is getting changed. Okay, so no fixed shape. So the concept is like this only. Here, in case of data and internet and this changing world, right? So here is the next big thing available to the users today is the technology called cloud computing. Cloud computing allows user to have complete access to their data or resource from any part of the world. So this is what the meaning is. आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो डेटा, ठीक है, क्लाउड में रखा है तो ओके. क्लाउड का कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता है, ओके, और एज पर रिक्वायरमेंट इट इज गेटिंग अवेलेबल. दैट इज द मेन थिंग. The cloud computing facility is available for both personal and official uses. The first type of usage is called as personal cloud computing. A typical example of personal cloud computing scenario is Google Drive. Okay, so ये इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. So student, please remember this. Google Drive is the example of personal cloud computing. Google provides us a free drive space of 5 GB shared between Google Drive and Google Plus Photos. ठीक है, तो ये सब 5 GB जितना प्रोवाइड किया जाता है स्पेस गूगल ड्राइव में. ओके, देन नेक्स्ट इज सो दैट यू कैन कीप योर फाइल्स, ईमेल्स, फोटोज एंड दीज आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस एनीवेयर. सो गूगल फोटोज़ तो हम सभी यूज़ करते ही है, एक्सेसिबल होता है वो, 5 GB जितना स्पेस अवेलेबल होता है उसमें. दिस ऑप्शन इज़ बेटर देन कैरिंग अ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव में स्पेस भी इतना नहीं होगा, 2 GB, अगर ज़्यादा GB का है तो ठीक है, लेकिन कैरी करना वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज़ यू डू नॉट हैव टू कैरी दिस थिंग्स, सो इट इज़ अवेलेबल देयर ओनली. सो दिस इज़ रिगार्डिंग फिगर नंबर 13.4. दे आर talking about, it shows the typical GUI of Google Drive, right? So focus here, GUI of Google Drive. You might have seen this, right? So here are the different titles and here is the date wise, all the folders are available or files are available with title. Okay, like this. This is what is the Google Drive. One of the many benefits of personal cloud is a feature of automatic synchronization. So automatic synchronization is another thing that is important. आपके इसमें फ़ोटो हो चुके हैं, आए हैं, तो फिर वो अपने आप अपलोड कर लेगा, सिंक्रोनाइज करेगा. This feature comes in handy when user wants to keep copies of multiple places, copies at multiple places. ओके, सो बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए, अलग अलग जगह पर चाहिए, सो ये सारा पॉसिबल है. से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ यूज़र सर्चेस फॉर अ वीडियो ऑन द वेब एंड परचेसेस दिस वीडियो यूजिंग मोबाइल डिवाइस. कोई वीडियो उन्होंने सर्च किया और मोबाइल डिवाइस से उसे परचेस किया, देन दिस वीडियो फाइल not only downloads to their mobile device but also downloads automatically to all the devices that are linked with the cloud account. ये सारे जो डाउनलोड होंगे कहाँ कहाँ होंगे, जो भी क्लाउड अकाउंट से कनेक्टेड है सब जगह पे होंगे. इट इज़ पॉसिबल टू सिंक द क्लाउड अकाउंट विथ मल्टीपल डिवाइसेस. अगर आप सिंक कर देते हो, ये ऑप्शन आपने देखा होगा, सिंक्रोनाइजेशन इज एक्टिवेटेड और नॉट.
ओके अगर सिंक आप एक्टिवेट करते हो तो हर जगह पे वो कॉपी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी. एट द सेम टाइम मल्टीपल जहाँ 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 पर ये अकाउंट कनेक्टेड है या लिंक्ड है वहाँ सभी जगह पे ये कॉपीज आएगी. विथ मल्टीपल डिवाइसेस लाइक यूजर होम डेस्कटॉप, ऑफिस लैपटॉप एज वेल एज मोबाइल फ़ोन, अगर लिंक किया तो ठीक है, क्योंकि ये क्लाउड के रिलेटेड है. The another example they are talking about is Ubuntu One. It is also the personal cloud platform. एक तो गूगल ड्राइव के बारे में बताया, दूसरा है Ubuntu One. It's also the personal cloud platform that allows us to keep all our digital data together. सारा डिजिटल डेटा एक जगह पे इकट्ठा होगा. ओके we can use the content. ये कंटेंट को हम यूज़ भी करते हैं our way whenever we are. With Ubuntu One suite of cloud services that include storage, sync, sharing as well as streaming. We have immediate access to our music collection, favorite photos, videos, important documents and more at any time and from any device. That's what is the important point, at any time and from any device. ओके इट वॉज लॉन्च्ड इन May 2009. ये तो बहुत पुराना है, ठीक है. अब तो एडवांस्ड वर्जन्स आ गए हैं उबंटू के भी. टू प्रोवाइड सस्टेनेबल रेवेन्यू फॉर उबंटू द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कमर्शियली बैक्ड बाय कैनोनिकल. टू क्रिएट योर अकाउंट ऑन उबंटू वन. अगर आपको उबंटू वन में अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो ubuntu1.ubuntu.com. So it is also shown here in figure 13.5. Home page of Ubuntu One is like this. See here Ubuntu One's home page. One place to store and manage all your files safely. Okay, you can sign up for free. Then next point is, अभी देखिए ये सब चीज़ें जो हुई है उसकी वजह से ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ने लगा है. सो बिजनेसेस हैव ऑल्सो बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ये जो मॉडल है इससे बिजनेस को काफ़ी बेनिफिट हुआ है. फॉर बिजनेसेस द क्लाउड कंप्यूटिंग सिनेरियो इज अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स, नेमली Software as a Service SaaS, Infrastructure as a Service IaaS, Platform as a Service PaaS. ये अलग अलग तरीके के सर्विसेज है जो अवेलेबल हुई है अभी, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन में चूज एनी ऑफ दिस मॉडल्स. ये सारे मॉडल्स है, आपके बिजनेस का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो. Let us see the basic concept of each of these models in brief. अब इनका बेसिक कंसेप्ट है क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, ठीक है. सबसे पहला पार्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग इट्स ओन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जनरली यूजेस सॉफ्टवेयर बाय मेकिंग पेमेंट टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. अब एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो यूज़ करना चाहते हैं तो क्लाउड में से कोई सॉफ्टवेयर जो बना बनाया है ऑलरेडी उसे यूज़ करना है और उसका आपको पे करना कहाँ पड़ेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होगा उसको, ठीक है. द सर्विस प्रोवाइडर होस्ट्स द सॉफ्टवेयर एट इट्स वेब सर्वर, और वो क्या करेगा, वेब सर्वर की तरफ ये भेजेगा और वेब सर्वर के थ्रू आपको फिर इंस्टॉल करना होगा. सो दैट द कंपनी डज नॉट नीड टू इंस्टॉल इट. तो कंपनी पर्टिकुलरली वो कंपनी नहीं आएगी, तो ये सॉफ्टवेयर बना बनाया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आपको मिल रहा है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट इज द एडवांटेज. द सर्विस प्रोवाइडर विल ऑल्सो मैनेज द सॉफ्टवेयर ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी. कंपनी के बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइडर ही उस सॉफ्टवेयर को मैनेज भी करता है. सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है. दिस मॉडल reveals the business organization from buying, installing and maintaining software or hardware.
या तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. ये सभी सर्विस प्रोवाइडर के अंडर में आ जाता है जो क्लाउड के थ्रू आपको मिल रही है. ऑल दे नीड इज द इंटरनेट कनेक्शन दैट अलाउज देम टू कनेक्ट टू द सॉफ्टवेयर टू एंड यूज इट. ऐसा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें यूज़ कर पाएँ. दैट मीन्स बिजनेस के अकॉर्डिंग. ओके, सो SaaS एग्जाम्पल्स इंक्लूड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज अ सर्विस. ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM. अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, ऑब्वियसली आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, है ना, और बढ़ेगा, ग्रोथ होगी उसमें. Salesforce.com is one of the most used cloud service for customer relationship management software. Figure 13.6 shows the home page of http://www.salesforce.com/in. So this is what they have provided one. Okay, so all was regarding the software as a service part. The next part is infrastructure as a service. अब ये होम पेज यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने. यहाँ पे हार्डवेयर की और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ये सब किस तरह से मैनेज हो रहा है, क्लाउड के थ्रू. तो ये बीच में आप सर्विस क्लाउड देख रहे हो, यहाँ पे सेल्स क्लाउड है और इधर मार्केटिंग क्लाउड है. ओके, नो हार्डवेयर, नो सॉफ्टवेयर, नो हेडेक्स. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो इस तरह से वर्क होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. अब यहाँ पे नाम जिस तरह से सजेस्ट करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होगी ना, मे हायर द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ इस्टेब्लिशिंग इट्स ओन फिजिकल रिसोर्सेस. खुद के फिजिकल रिसोर्सेस इस्टेब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा ये क्या करेगी, ये क्या करते हैं, हायर करते हैं हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ओनली. ओके, द हार्डवेयर एट अ क्लाउड इज यूज्ड टू सपोर्ट डिफरेंट ऑपरेशंस. अब हार्डवेयर पड़ा है, उसे कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो क्लाउड वाले अवेलेबल करवा देते हैं ना. सो कुछ सालों पहले, मतलब 10 साल के करीब पहले इस पे प्रोजेक्ट वर्किंग थे क्लाउड्स पर. अब ये सब पॉसिबल हो चुका है. आने वाले 10 सालों में टेक्नोलॉजी और इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में. ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से हो भी जाएंगे. ओके, कम टू दिस पॉइंट हियर. सी, hardware at a cloud is used to support different operations such as computation, storage, printing, backup, network components, etc. Okay, and the networking components. So the service provider owns all these equipments and is responsible for housing, running and maintaining it. जो भी मेन रोल है सर्विस प्रोवाइडर का ही है इसमें. Some of the IaaS providers are Windows, Azure, वर्चुअल मशीन्स. कुछ जो होते हैं वर्चुअल मशीन्स है, कुछ है गूगल कंप्यूट इंजिन और HP क्लाउड, इस तरह से. ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के क्लाउड. ओके, नेक्स्ट वन इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. अब कुछ चीज़ें होती है जो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है ना. कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर रन के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हियर इज जनरली a software company that creates a software using tools and or libraries. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टूल्स या लाइब्रेरीज अवेलेबल करके देते हैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज. लेकिन क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइडर ही इसे प्रोवाइड करेगा. इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स. डिप्लॉयमेंट एक अलग टर्मिनोलॉजी है. डिप्लॉय करना होता है, एक्चुअली वर्किंग स्टेट में सॉफ्टवेयर जब आता है ना तो उसे प्रॉपरली बोलते हैं डिप्लॉय कर दिया गया है. ठीक है, सो एंड द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स. कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अलावा आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाओगे. ओके, द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स द नेटवर्क, सर्वर्स, स्टोरेज एंड अदर सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर. अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा कि ये सर्वर, स्टोरेज
और जो भी दूसरी सर्विसेज जरूरी होती है छोटी मोटी, वो सभी ये प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए. दिस मॉडल फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विदाउट द कॉस्ट के बिना, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग अंडरलाइंग हार्डवेयर. तो ये अपने को इतनी सारी कॉस्ट वो चीज़ों के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज दिस थिंग्स फ्रॉम क्लाउड. ओके, और हार्डवेयर की एक्चुअल हार्डवेयर परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड द सॉफ्टवेयर एंड प्रोविजनिंग होस्टिंग प्रोविजनल होस्टिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती है. ठीक है, जब भी आपको कोई वेबसाइट बनानी रहेगी तब डोमेन नेम वो सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, तो होस्टिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी जाती है. मेनी कंपनीज हैव वेंचर्ड इनटू द डोमेन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, बहुत सारे कंपनीज तो उसमें ही काम करते हैं. दिस फिगर shows the glimpse of some of these companies. So students, here are the certain companies: Sun Microsystem, then Microsoft, then IBM, then Google, Intel, HP, EMC Square, Amazon, Oracle, VMware, Dell. Like this, there are so many companies, but some of these companies they have shown here. कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज. ओके, सो ये सारी कंपनीज के नाम हैं. अब फाइनली यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सिनेरियो वो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? यस, बाय इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, तो ये क्या कैसी है कैरेक्टरिस्टिक्स? एक्चुअली इट इज़ यूजुअली ऑफ साइट, एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट. ये बहुत ही मेन पॉइंट है. एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट, मिनिमल आईटी नॉलेज इज रिक्वायर्ड. आईटी का बहुत सारा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग एक्सेस कर सकते हो सर्विस को. अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है. फ्रॉम डेस्कटॉप टू मोबाइल फोन्स, डेस्कटॉप में भी है, मोबाइल फ़ोन में भी है. अलग अलग ऐप के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो, वही कर रहे हो ना. टुडे क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर कंज्यूमर एंड फॉर बिजनेस, फॉर इट सेव्स द एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट. ये सभी कम से कम कॉस्ट में, कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में हम लोग कर सकते हैं. हार्डवेयर भी अवेलेबल जो है क्लाउड में वो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑल दीज आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स दैट वी हैव सीन. PaaS, IaaS and yes, SaaS. So students, read this chapter. This is your homework. Reading this chapter